Good morning, students. I am Ms. Shikha Durga, PGB Bio. Today I am going to start a first unit of your 12th biology book, that is reproduction. This unit includes mainly 4 chapters. That is, first chapter is reproduction in organism. Second chapter is reproduction in flowering plant, and third chapter is reproduction in human, and fourth chapter is reproductive health. In this video lecture, I am going to discuss your first chapter of this unit, that is reproduction in organism. Firstly, I am going to discuss the content of this chapter, that is lifespan. This is the first topic of this chapter, that is lifespan. Second topic of this chapter is reproduction and their importance. In this topic, I am going to discuss that is what is the proper definition of reproduction and what their importance. And third topic is that is types of reproduction. In this topic, I am discussed about the types of, that is asexual and sexual reproduction. And next topic is types of asexual reproduction. There are different types of asexual reproduction are present in different types of organisms. That is, first one is fission, and fission are also divided into 2 parts, that is binary fission and multiple fission. Second one is budding, third one is fragmentation, and fourth one is that is regeneration, and fifth one is spore formation, and last sixth is vegetative propagation or vegetative reproduction. After that, at last this chapter we discuss the sexual reproduction and events related to sexual reproduction, and last topic of this chapter is other modes of reproduction. So next I am going to discuss the term, that is lifespan. How can you define the term lifespan? Lifespan, it is the time period of an organism from birth to till natural death. That time period is known as lifespan. Let's see, that is the time period. That time period from birth to natural death of an organism. Organism known as lifespan. Lifespan may be varied from organism to organism. It may be varied. It varies from organism to organism. I think you understand the meaning of lifespan. Lifespan is nothing but it is a simply period from birth to natural death of an organism, that is known as lifespan. सिंपली आप इसको समझ सकते हो कि जो हमारा जीवन होता है, जो हमारी लाइफ होती है, जितना हम जीते हैं, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन. ठीक है, और ये लाइफ स्पैन जो होती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में ये लाइफ स्पैन होती है, जो जीवन होता है वो क्या कर सकता है, डिफर कर सकता है. ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, दैट इज इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. अब देखिए जो लाइफ स्पैन है ना, ये इट कंटेन्स मैनी स्टेजेस. आपकी लाइफ साइकिल में, आपकी इस लाइफ पीरियड में, मतलब बर्थ से डेथ तक के पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसको आप अपना बोल सकते हो कि बर्थ के बाद क्या आता है, एडल्टहुड आता है. उसके बाद आप जो है रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, मतलब प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि आप जो है ओल्ड एज में आ जाते हैं, मतलब जिसको हम एजिंग बोलते हैं. और ये इस तरीके से अगर थोड़ा मतलब एजिंग के बाद हम जो है डेथ की तरफ जाते हैं. तो सिंपली वी कैन से दैट इज लाइफ स्पैन contains, that is basically these phases. These are known as life cycle of phases. Our next topic after that lifespan is life cycle of phases. Phases of life cycle. Phases of life cycle. That is phases of life cycle. It includes first, that is juvenile phase. Juvenile phase
Second one is reproductive phase. Reproductive phase. And third one is that is senescent phase. Senescent phase, that is also named as aging. Is also known as aging. And fourth, you can consider that after senescent, that is death. But basically, juvenile phase, reproductive phase, and senescent phase are considered in the phases of life cycle. अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ कि जुवेनाइल फेज को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एंड सेनेसेंट फेज। आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है इसमें, लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी में इससे क्वेश्चन है रिलेटेड कि डिफाइन दीज फॉलोइंग टर्म्स जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज जुवेनाइल फेज। दैट इज जुवेनाइल फेज। Juvenile phase. Juvenile phase is also known as pre-reproductive phase. As you know that is juvenile phase is written before the reproductive phase. So we can say that juvenile phase is known as pre-reproductive phase. Pre-reproductive phase. This is the another name for the juvenile phase, that is pre-reproductive phase. अब आप इससे क्या समझेंगे कि प्री-रिप्रोडक्टिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज से क्या मतलब है। एक्चुअली बहुत सिंपल सा टर्म है ये जुवेनाइल फेज। आपको शायद टर्म समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जुवेनाइल फेज का आप ऐसे समझ सकते हो कि जब बर्थ होती है ना, बर्थ के बाद का जो पीरियड होता है, मैच्योरिटी से पहले का, प्यूबर्टी से पहले का जो पीरियड होता है जिसमें ग्रोथ होती है, दैट पीरियड इज नोन एज juvenile phase. I think you understand that what is the meaning of juvenile phase. That period after the birth but before the maturity, that is puberty, that period is known as juvenile phase. In plants this juvenile phase is known as vegetative phase. Simply juvenile phase plants से अलग नहीं है। आप देख सकते हो कि फ्लावर आने से पहले जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स अपनी ग्रोथ जो करता है ना, ऐसा ही एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स बर्ड्स जैसी ही होती है, उसके बाद जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 11 ईयर्स तक अपनी एज को बढ़ा रहा है ना, ग्रोथ कर रहा है, दैट इज नोन एज जुवेनाइल फेज। और प्लांट्स में भी ऐसे होते हैं, जब आप सीड लगाते हो उसके बाद क्या होता है, प्लांट्स एक साथ फ्लावर नहीं देने लगता है। उसमें क्या होता है, उससे पहले वो अपनी हाइट को इंक्रीज करता है, ब्रांचेस इंक्रीज करता है। दैट पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज नोन एज जुवेनाइल फेज or pre-reproductive phase. Second one is that is reproductive phase. Reproductive phase. This is the phase which comes after the juvenile phase, after the growth. In this phase, organism, it may be a plant or it may be an animal, become sexually mature. For example, in human being, after attaining the 11 to 12 or 13 years age, then we become, the puberty age is coming. What is the meaning of puberty? There is some secondary sex characters are developed, that is upcoming of, that is mustache, beard in males, and there is in females there is breast development and coming of menstrual cycle, like that. These are the some secondary sex character by which we understand that is puberty is coming. Similarly, in plants, there is flower is also the indication of reproductive phase. In this phase, organisms are able to produce young ones. In this chapter, we basically discuss about the reproductive phase. That is, our chapter name is reproduction in organism. After that, third one is senescent phase. Third one is senescent phase. आप देख लो सेनेसेंट फेज को आप सबसे अच्छा तब समझ सकते हैं, मैंने इसके आगे देखिए क्या लिखा है, एजिंग। आपके दिमाग में आ गया होगा कि जैसे रिप्रोडक्शन की फेज एंड होने को आती है, उसके बाद क्या होता है, एक नई स्टेज स्टार्ट होती है जिसे हम एजिंग कह सकते हैं। और सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का नया नहीं है ये। आपकी लाइफ साइकिल में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बर्थ हुई। फिर से एक बार समराइज कर देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले बर्थ हुई, आपने डेवलपमेंट, आपने 2-3 साल जो है इस तरीके से अपना ग्रोथ की। उसके बाद आप सेक्सुअली मैच्योर हुए, दैट इज नोन एज प्यूबर्टी के एज में आ गए। देन आपने एडल्ट
एजेस में जाएंगे फिर क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आप उतने एक्टिव नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, ठीक है। तो दैट फेज इज नोन एज सेमीसेंट फेज। और जब आप काफ़ी इस तरीके से आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वीक हो जाएंगी तो क्या होगा कि उसके लास्ट में जो स्टेज आएगी दैट इज नोन एज डेथ। तो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेमीसेंट फेज। I have already told you that in this chapter we are going to discuss that is reproductive phase, because your chapter name is reproduction in organism. Let's start. What is the reproduction? How can you define the term reproduction? Anybody can define the term reproduction? Okay, मैं define करती हूँ कि reproduction क्या है. That is, let's wait. Reproduction is a biological process. Reproduction, how can you define the term reproduction? This is the proper definition of reproduction. Reproduction is a biological process. It is a biological process. It is a biological process. It is a biological process in which organisms produces young ones or that is offsprings similar to itself. देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। दैट इज, सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, आप अपने जैसे और यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ बायोलॉजिकल, डेफिनेशन लिखने का कोई सिस्टमैटिक वे तो होना चाहिए ना, तो वो मैंने आपको बता दिया है और आप उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन को सीखें। दैट इज, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. It is a biological process in which organisms, it may be plants or it may be animals, produces young ones or offspring similar to itself. अब I think मुझे लग रहा है कि आपको कुछ टर्म्स को समझना चाहिए. That is biological process. Biological आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं. दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजी जो है, बायो वर्ड जो है वो किससे, लिविंग बीइंग से रिलेटेड है. तो आप देख रहे हैं जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो किसके पास है, लिविंग बीइंग के पास है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के पास. नॉन लिविंग जो है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दैट इज, रिप्रोडक्शन इज सिंपली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट मीन्स दैट इट इज रिलेटेड टू द लिविंग बीइंग्स and it is done by only the living beings. That is why it is known as biological process, in which organism, I have already told you that organism includes both plants and animals. Organisms produce young ones or offspring similar to itself. शायद आपको पता चल गया होगा young ones का मतलब क्या हुआ, जैसे simply children. We are the children of our parents. Similarly, offspring, that is the another term given to the children, that is offspring, similar to itself. अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, रिप्रोडक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल्स को जो है मतलब बर्थ देगा आगे, इट्स ओके. बट ये कैसे पॉसिबल है कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे सिमिलर टू इटसेल्फ, हम तो अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं है. तो बेटा यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की कॉपी है. यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये समझना है कि आप होमो सेपियंस हो, योर फादर इज होमो सेपियंस, तो आप भी क्या होमो सेपियंस हो. स्पीसीज आर सेम. डॉग जो है वो सेम स्पीसीज को ही प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे जो मतलब है सिमिलर टू इटसेल्फ. तो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स produces young ones or offspring similar to itself. क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि offspring का मतलब क्या है? These मतलब its mean is offspring means children. अब आगे जब भी कभी ये वर्ड आता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए offspring का मतलब क्या है,
अब नेक्स्ट आता है कि दैट इज व्हाट इज, अभी रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? बात बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। Anybody can guess what is the importance of reproduction? I think you know, but थोड़ा सा मन में आ रहा होगा कि पता नहीं जो हम बोलेंगे वो सही होगा या नहीं होगा, कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस आप जो है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वो समझने की कोशिश कीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट बनाइए। तो इसमें सबसे पहला क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है इसमें दैट इज इट मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। इट मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। पहले हम इन पॉइंट्स को लिख ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इनेबल्स continuity of species, and third one is it produces variations. It produces variations. It produces variation among the population. अब देखिए क्या है इसका मतलब, आपने तो लिखा हुआ देख लिया कि दैट इज देयर इज बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज इट मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। बहुत इजी है इस टर्म को समझना, इस सेंटेंस को समझना, इट लाइफ ऑन अर्थ। आप सोचिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अगर वो अपने जैसे ही और बर्थ नहीं देते और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या होता कि मतलब अर्थ से लाइफ ही वैनिश हो जाती थी। लाइफ जो थी रहती है, मतलब अगर डॉग की बात करें या अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें, एलिफेंट है, अगर वो अपने जैसे को प्रोड्यूस नहीं करते तो शायद हम आज नहीं जानते कि एलिफेंट्स कैसे दिखते थे, कैसा क्या होता था। लेकिन ये रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि मतलब हम कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। तो इसीलिए सिंपली अगर अर्थ में लाइफ सस्टेन है, दैट इज इट मेंटेन्स लाइफ ऑन अर्थ। सेकेंड वन इज इट इनेबल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज का मतलब है कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस ही यही है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपने ही स्पीसीज का एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो इससे क्या होता है कि जनरेशन जो है वो सस्टेन रहती है। तो दैट इज इट इनेबल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा और एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा तो गैस आप यही करेंगे ना कि दैट वन इज एलिफेंट। ऐसा तो नहीं होगा कि लाइन आ जाएगा, और ऐसा होगा भी नहीं, वरना तो कुछ अलग ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली वो अपने ही सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज इट मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, वी ऑल आर होमोसेपियंस। हम लोग होमोसेपियंस हैं, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रोड्यूस किया है और इसी तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहेगा और इसी तरीके से होमोसेपियंस जो है वो बने रहेंगे। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट importance of reproduction is it produces variations among the population. अब ये वेरिएशन क्या है, आपको ये वेरिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। आप देखिए कि जो रिप्रोडक्शन है ना, ये क्या लेके आता है, ये मतलब ऑर्गेनिज्म में जो न्यू ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें वेरिएशन लेके आता है, मतलब बदलाव लेके आता है। जिससे क्या होगा कि बदलाव आएंगे तो एक नई स्पीसीज के बनने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। जैसे आप कुछ सोच सकते हो कि क्या हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता चलेगा कि 50% करेक्ट, इतना आप जानते भी हो, 12th में आ गए हो, इतना तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज 50% करेक्टर्स कम्स फ्रॉम फादर एंड 50% करेक्टर कम्स फ्रॉम मदर, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी वजह से हमारे अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं।
यही सारी चीज़ें हैं और इसकी यही मेन कारण है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होते हैं। और ये वेरिएशन जब आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नई स्पीसीज बनने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो मैं ये होप करती हूँ कि आप सबको प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन को आपको लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है, बल्कि नोट्स में लिखने के साथ साथ आपको याद भी करना है कि दैट इज रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑफस्प्रिंग का मतलब हुआ चिल्ड्रन। जैसे ही ऑफस्प्रिंग का नाम आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑफस्प्रिंग इज नथिंग दैट इज द चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स are present here. Next our topic is that is types of reproduction. There are two types of reproduction, that is asexual and sexual. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ number of participants. Participants means how many organisms are involved to produce young ones, है ना। इस बेसिस पे हमने टू टाइप्स में रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया है, दैट इज एसेक्सुअल, सेकंड वन इज सेक्सुअल। ठीक है, ये सारी चीजें, तो हम इसको थोड़ा सा यही समराइज कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और बोर्ड में भी बहुत मतलब आपको कॉमन 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा कि राइट द सम डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा ये समझना। यहीं पे हम डिफाइन करते हैं, आपके हो सकता है कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं, फिर भी हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, इट मीन्स दैट हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व। इफ only one organism is involved to produce a young one, then it is categorized as asexual reproduction. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, देन इस तरीके के जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच two different types of organisms are involved. Such type of reproduction is categorized as sexual reproduction. Let's write here, if only one organism produce offspring, then such type of reproduction is known as asexual reproduction. And sexual reproduction, if two different types of organism produce offspring, then such type of reproduction is known as sexual reproduction. अब देखिए क्या है, two different types of organism, it means that one is male and other is female. तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि सिंपल सा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा मैं बार आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि फिर ही आपको जो है आगे की चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे और थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। फिर से एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये टर्म, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है इनको, on the basis of participants, it means that how many organisms are able to produce young ones. If only one organism participate to produce young ones, then it is known as asexual reproduction. If two different type of organisms are able to produce young one, that is one is male and other is female, then it is categorized as sexual reproduction. In asexual reproduction, sexual reproduction we discuss after the asexual reproduction. Firstly, I am going to discuss that is asexual reproduction. That is asexual reproduction. The offspring are named as clone. Why these are named as clone? Because they are morphologically and genetically are similar. It means that
by it known as clone. In board exam, this question is asked, why the offspring produced by asexual reproduction are named as clone? Simply you can define that clone is just copy. Clone means that is these are simply genetically and morphologically are similar. Clone का मतलब हुआ these offspring are morphologically and genetically are similar. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में कि why these are referred to as clone, तो आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, मतलब 100% जो करेक्टर आने हैं वो कहाँ से आने, सिंपल एक ही पेरेंट से आने, सिंपल सी बात है। तो जो डीएनए होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स की, तो इसकी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा वो अपने पेरेंट्स की क्या होगा, जस्ट कॉपी होगा। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज क्लोन। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से एंड जेनेटिकली मतलब डीएनए से। तो आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी आल्सो डिपेंड ऑन डीएनए, दैट इज व्हाई दीज आर नेम्ड एज क्लोन। तो यह हमारा लेक्चर जो होता है वो यही फिनिश करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, लाइक दैट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।